Hello and welcome in our German language series, Master German Conversation. जर्मन लैंग्वेज में इस थ्रू द सीरीज हम हर रोज ऐसे टॉपिक पे टॉप 30 सेंटेंसेस की बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन रेगुलर सेंटेंसेस हैं. सो टुडेज टॉपिक इज Wegbeschreibung geben und verstehen, यानी आप डायरेक्शन बताना चाहते हैं, एड्रेस बताना चाहते हैं, कैसे तो बताएंगे और कैसे पूछने के लिए आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट 30 सेंटेंसेस की बात करेंगे. Here is okay, it is you. So, wo ist der Bahnhof? Where is the train station? Bahnhof, that means train station. Wie komme ich zum Supermarkt? Wie komme? How I do come at Supermarkt, to the Supermarkt. So here is shum na shu plus dem. Shum. Gehen Sie geradeaus. Geradeaus, that means ahead or straight. So go stand is ahead. So abbiegen that means turn, to turn. Biegen Sie links ab. या biegen Sie rechts ab. Turn left, turn right. As is in der Nahe. As is in der Nahe, that means it is nearby. पास में ही है. As is weit from here. Wide, that means far. It is far from here. यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है. Understand? Folgen Sie der Straße. Follow the street. काफी बार कहते हैं ना सीधे चले जाओ, इसका मतलब यही है. Folgen Sie der Street. Follow the street. Geben Sie bis zum Ampel. Sorry, gehen Sie bis zur Ampel. Bis, that means till na. Till. Go to traffic light. Go to the traffic light. यानी till traffic light तक जाओ. As is neben der Post. It is next to the post. Neben का मतलब नियर बाई या नेक्स्ट टू. अंडरस्टैंड. एस इज gegenüber from park. gegenüber, that means opposite. प्रीपोजिशन आपको याद होनी चाहिए. gegenüber, that means opposite. It is opposite the park. Gibt es eine Bank in der Nähe? There is a bank nearby. बैंक के पास में है. Here is the Apotheke. Apotheke, that means pharmacy, is die Ecke. Ecke, that means corner. The pharmacy is around the corner. Gehen Sie über die Brücke. Über na? Over the bridge. Go over the bridge. Gehen Sie durch den. Durch, that means through. यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी आपका पूरा रिवीजन हो रहा है. Gehen durch über. So gehen Sie durch den tunnel. Go through the. अब durch, that means through, किसी में से पास होकर जाना. ओवर, दैट मीन्स ऊपर से जाना. अंडरस्टैंड. तो याद रखना है. नेमन जी दी स्वाइटर स्टार से रेस्ट. टेक द सेकंड स्ट्रीट ऑन राइट. दूसरी गली राइट में. एस इज नेबन डैम कीनो. इट इज नियर, नेक्स्ट, नियर और नेक्स्ट टू द सिनेमा. पास में है. दी बुस हाल्ट स्टेले. बुस हाल्ट स्टेले का मतलब होता है बस स्टॉप. इस फॉर्म फॉर डेयर for them Gebäude. The bus stop is front of the building. Gebäude, that means building. The Bush Haltestelle is for them Gebäude. That means जो बस स्टैंड है वो फ्रंट. फॉर का मतलब इन फ्रंट ऑफ ना. प्रीपोजिशन याद रखनी है सारी. इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग. एस इज हिंटर der Schule. It is behind the school. स्कूल के पीछे. जी म्यूशन umdrehen. Umdrehen, that means turn. You should to turn around. आपको टर्न लेना ही पड़ेगा. Ist as zu Fuß erreichbar. Erreichbar, that means reachable. Is it within walking distance, कि एकदम walking distance पे ही है. Wie weit is as from here. How far it is from here. यहाँ से कितना दूर है आप पूछते हैं. So gibt es eine U-Bahn Station in der Nähe. Is there subway station nearby. यहाँ पे कोई subway station है near पे. As is 10 Minuten zu Fuß entfernt. Entfernt, that means away. It is 10 minutes away on foot.
यानी 10 मिनट की दूरी है पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे। इस बिन फॉरलॉरन, आई एम लॉस्ट, मैं तो खो ही चुका हूँ। Können Sie mir den Weg zeigen? Zeigen that means to show. Can you show me the way? क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? बेनुत्सन जी गूगल मैप्स, यूज गूगल मैप्स। बेनुत्सन that means यूज करना। इश बेनुत्से जॉन टीम है। सो यू कैन सेंटेंस, आप बहुत सारे, एक बार आपको वर्ब पता चले और एडजेक्टिव्स का कैसे यूज करना है तो आप कहीं पे भी प्लेस करके नया सेंटेंस बना सकते हैं। Gehen Sie den Hügel hinauf. Go up the hill. Hügel, that means hill. Gehen Sie den Hügel hinter unter. Go down the hill. पहाड़ से ऊपर जाओ, नीचे जाओ। Danke für Ihre Hilfe. Thank you for your help. इन जर्मन लैंग्वेज आप कहाँ कहीं से भी जर्मन लैंग्वेज सीखी हो, बट इन जर्मन लैंग्वेज जब हम कोई भी कन्वर्सेशन एंड करते हैं तो थैंक यू ग्रीट करते हैं आमतौर पे। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा तो थैंक यू हम लिखते हैं या बोलते हैं। बट अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि आपको ग्रीट बहुत अच्छे से करना आ जाना चाहिए, यानी किसी ने आपकी हेल्प की है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। इन जर्मन कल्चर में आप कोई भी काम आपकी हेल्प करता है या आप किसी की हेल्प करते हैं, अगर आप उसको थैंक यू या अप्रिशिएट नहीं करते हेल्प के लिए तो वो फिर मिसबिहेव माना जाता है इन यूरोपियन कल्चर और इन जर्मन कल्चर। तो ग्रीटिंग्स आप याद रखें, ग्रीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स की बात करते हैं। ग्रीटिंग्स की बात इसलिए ही करते हैं क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में अगर आप ग्रीट करते हैं तो सामने वाले को अच्छा ही लगता है, सुनने में अच्छा ही लगेगा। सो ग्रीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मन लैंग्वेज। तो डांके फ्यूर इरे हिल्फ है, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपके हेल्प के लिए धन्यवाद। सो आउफ विडर्जन।